لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقائے کریم کے دیوانوں، یہ نشہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ جب اندلس کی سرزمین پر طارق ابن زیاد نے اسلام کا پرچم لہرایا تو ان لوگوں نے اس ملک کو مسلمانوں سے واپس لینا چاہا، تو سوچا کہ مسلمانوں سے ہم تلواروں کے بل پر ملک کو واپس نہیں لے سکتے، تو کیا کیا؟ انہوں نے نشے کو عام کیا اس ملک میں، اور مسلم جوانوں کو نشے کا اتنا عادی بنا دیا کہ جب مسلمان شراب و شباب میں ڈوب گئے تو جس ملک کو وہ تلوار اور طاقت کے بل پر واپس نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے صرف مسلمان جوانوں کو نشے میں گرفتار کر کے اس ملک کو واپس لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے ساتھ یہ سازش کی جا رہی ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر نشے کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے، نشیلی دواؤں کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ نشے کے اندر مبتلا ہو جائے، اور لوگ نشے میں جو گرفتار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے تو پھر اس کو بھی نشے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نشہ کرنے والا محلے میں ہو تو ہم اپنی اولاد کو اس کے قریب نہ بیٹھنے دیں، اس کی صحبت اختیار کرنے نہ دیں، اس لیے کہ صحبت انسان کو بناتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ نشہ کرنے والے پہلے اپنی جیب سے لوگوں کو نشہ کرواتے ہیں، وہ جانتے ہیں جس دن یہ نشے کا عادی ہو گیا پھر یہ اپنی جیب سے ہمیں نشہ کروائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، 12 15 سال کے بچے نشے کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بری صحبت سے بچاؤ۔ اگر اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچا کر نیک صحبت کی طرف لانا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کے قریب کرو، آپ کا بچہ نیک بنے گا۔ جانتے ہیں شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں غسل کر رہا تھا، میں نے مٹی کو اپنے بدن پہ ملنا شروع کیا، مٹی سے گلاب کی خوشبو آئی۔ میں نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی بتا تجھ میں گلاب کی خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مٹی ہے، مہکنا تیرا کام نہیں، مہکتے تو گل کیا کرتے ہیں، لیکن تو کس طرح مہک رہی ہے؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ اے سعدی، میں چند دن گلوں کی صحبت میں رہی، ان کی خوشبو میرے اندر بھی بس گئی، پتا چلا اگر نیکوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو نیکیوں کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جواریوں کے، شرابیوں کے، چور اور ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ہرگز نہ رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، فلموں کے ذریعے سے ایسے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، فلموں کے ذریعے سے اس طریقے کے نشے کو عام کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ نشے کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم عادی ہو گئے، اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نشہ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ بس اختتام پر اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ماں کے دودھ سے لذیذ اور کون سی شے ہو سکتی ہے؟ یوں تو تمام غذاؤں کے اندر دودھ سب سے بہترین غذا ہے، وہ پیاس بھی بجھاتا ہے، وہ بھوک بھی ختم کرتا ہے۔ جب جانوروں کے دودھ کی تعریف قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے تو ماں کے دودھ کی شان کیا ہوگی؟ ماں کا دودھ وہ ہے جب کوئی غذا ہضم نہیں ہوتی تب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2 سال تک کے جب ہم ماں کا دودھ پیتے پیتے جب بڑھنے لگتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ماں دودھ چھڑاتی ہے اور بچہ چھوڑتا بھی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جب ماں کا لذیذ دودھ 2 سال تک کے پی کر اگر انسان چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو شراب کے کڑوے گھونٹ کو وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ کتا گولیوں کے کڑوے ٹیسٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ بھنگ اور افیون کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس بات اتنی ہے، لوگوں نہیں دنیا سے محبت کرتے، نہیں دنیا سے پیار کرتے، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کرو، اپنی جان سے تو پیار کرو۔ سن لو، جس دن انسان نشے کا عادی ہوتا ہے اس دن کے بعد سے 20 سال سے زیادہ اس کی زندگی نہیں بچتی۔ 20
20 साल के अंदर अंदर वो हलाक हो जाता है। अमेरिका के साइंसदानों ने, अल्लाह अकबर, जिस वक्त कुत्तों को सिगरेट पिलाई, उसमें निकोटीन होता है 10 मिलीग्राम एक सिगरेट के अंदर, और 5 साल तक के जब उन्हें सिगरेट का आदी बनाया गया तो इब्तिदा में तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती थी, लेकिन जब वो आदी हो गए तो जैसे ही सिगरेट का धुआं जहां होता था, जब वहां दरवाजे के करीब पहुंचते तो वो खुशी से दुम हिलाने लगते। लेकिन वो कुत्ते, 20 कुत्तों को जब सिगरेट का आदी बनाया गया तो उसमें से 5 साल की कलील मुद्दत के अंदर 5 कुत्ते फेफड़े खराब होकर के मर गए। इसलिए कि कुत्तों का इंतखाब इसलिए किया गया था कि इंसान के फेफड़ों में और कुत्तों के फेफड़ों में बहुत ज्यादा मुशाबहत है। तो 5 साल के अंदर वो कुत्ते मर गए। किससे? सिर्फ सिगरेट से। और सिगरेट से ज्यादा नशा हेरोइन और इस जैसी दिगर लगवियात और खुराफात में होता है। आप मुझे बताएं कि इंसान जिस दिन नशा करता है और नशे का आदी होता है, 20 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं रहती और फिर नामर्दगी का शिकार हो जाता है, उसकी मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है। नशा करने वालों में ज़नखों की तादाद बढ़ती जा रही है और नामर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक तो इंसान जब नशे का आदी होकर अपनी मर्दानगी खो देता है, मर्दाना ताकत खो देता है, तो फिर चादर डालकर चेहरे छुपा छुपा कर बिस्तर में रोता है। लेकिन उस वक्त वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता और फिर अल्लाह अकबर, बीवियां तलाक मांगने लगती है, घर उजड़ने लगता है। और अगर कोई शरीफ बीवी उसके पल्ले में भी हो, अगर शरीफ बीवी को उसका पाला पड़ जाए, अगर वो शराफत की वजह से तलाक ना भी मांगे, वो सब्र करे, तो फिर 20 साल से ज्यादा उम्र ही क्या रह जाती है। फिर वो मौत के मुंह में चला जाता है। जब वो कब्र का गड़ा देखता है तब उसको होश आता है, लेकिन उस वक्त का होश उसको काम नहीं देता, उस वक्त का होश उसको सहारा नहीं देता। वो तड़पता है, वो बिलकता है, वो अल्लाह अकबर मौत के मुंह में पहुंचकर बेचैनी का शिकार होता है। लेकिन फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मौत से बचा नहीं पाती और जवानी में वो मौत की नींद सो जाता है कब्र के अंदर। और शराब और नशे की वजह से वहां भी उसे चैन नहीं मिलता, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, तालीम से महरूम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, वालिदैन बेसहारा हो जाते हैं। जरा सोचो तो सही, ये नशा घर घर को बर्बाद कर रहा है, फैमिली को तबाह कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है। थोड़ी देर के नशे के लिए अपने आप को तबाह मत करो, अपनी फैमिली को तबाह मत करो, अपने बच्चों को तबाह मत करो। कम से कम नहीं अपने आप को देखते तो अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी जवान बीवी की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। भाइयों, यतीम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेवा औरतों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। ये नशा है जो इंसान को चोर भी बनाता है, इसलिए कि नशा करने वाला कोई बहुत बड़ा बादशाह तो होता नहीं कि वो अपनी दौलत की बुनियाद पर सिर्फ नशा ही करता रहे। जब वो रातों दिन नशे में बेहोश पड़ा रहेगा तो वो कमाएगा कब, और फिर वो काम कब करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे दरिया का पानी खत्म होता है, उसकी दौलत उसे कब तक सहारा दे सकती है। फिर नशा करने वाला जरूर चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है। इसीलिए लोगों का जब तसव्वुर वहां तक नहीं जाता था, मेरे अल्लाह ने कुरान में शराब, नशे को और जुए को साथ में बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुए से बचो। इसलिए कि जितने नशाबाज लोग हैं वो सोचते हैं कि जब थोड़ी देर होश आया है तो कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा लें, और उसके लिए उनको जुए के अलावा कोई और सहारा और रास्ता नजर नहीं आता। और जब वो जुए के अड्डों पर पहुंचते हैं तो रही सही पूंजी भी खत्म कर देते हैं। जब बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं तो उस वक्त उन्हें होश आता है, सब तो खो दिया, और फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो चोरी की राह पर लग जाते हैं, वो जिना की राह पर लग जाते हैं। ऐसे नशा करने वालों को भी देखा गया, अखबारात में पढ़ा गया, जिन्होंने अपनी बेटी को नशे के एवज में गिरवी रख दिया। ये सूरत हाल पैदा हो सकती है
इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है, जहां पर आमाल की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, सुन्नी दावत इस्लामी अमल की इस्लाह करती है। अकायद की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी, अकीदे की इस्लाह भी करती है। और जहां पर समाज में इस तरीके की बुराइयां पैदा होगी, सुन्नी दावत इस्लामी उन बुराइयों के खात्मे के लिए भी कोशिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब, हमारे साथी जो है वो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुबल्लिगीन 3-3 दिन के काफिले में, 10-10 दिन के काफिले में जब नौजवानों को ले जाते हैं और सफर करते हैं, तो बेफज़्ल ही ताला काफिलों की बरकत से, इज्तिमात की बरकत से, अल्लाह वालों के आस्थानों की बरकत से, अल्लाह अकबर, जो है वो लोग नशे को छोड़ देते हैं और दीन की तरफ आते हैं। और एक बात आपको बताऊं, नशे का इलाज जहां किसी मजहब में नहीं, वहां किसी मसलक के पास भी नहीं है, सिवाय अहले सुन्नत व जमाअत के। असर का वक्त हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो जो आला क्वालिटी का लोहा होता है, जब वो अदना क्वालिटी पर चलता है, तो फिर अदना क्वालिटी वाला लोहा आला के आगे कट जाता है, चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, ऊपर चले या नीचे चले। अब नशे का खात्मा हो कैसे? हथकड़ियां डाल करके खात्मा नहीं किया गया। अमेरिका ने 1967 के अंदर, 67 के अंदर 300 लोगों को नशे की पादाश में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज तक वो नशे पे कंट्रोल नहीं कर सके। नशे पे कंट्रोल कैसे होगा? नशे पे कंट्रोल होगा नशे के जरिए से। नशे पर कंट्रोल नशे के जरिए से होगा। और वो कौन सा नशा है जिसकी बुनियाद पर नशे से हम नशे पे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो गोलियों का नशा नहीं है, वो शराब का नशा नहीं है, वो एमडी का नशा नहीं है, वो किसी और चीज का नशा नहीं है। ये वही नशा है जो बिलाल को मिला है, उसे इश्क़ रसूल का नशा कहते हैं। ये वही नशा है जो वैसे करनी को मिला है, जिसे इश्क़ रसूल कहते हैं। ये वही नशा है जो अबू बकर को मिला, उमर इब्न खत्ताब को मिला, उस्मान ज़ुन्नूरैन को मिला, अली मुर्तज़ा को मिला, साद और सईद को मिला, तलहा व ज़ुबैर को मिला, बगदाद के गौसुल आज़म को मिला, अजमेर के ख्वाजा को मिला, देवा के वारिस को मिला, बरकतुल्लाह इश्क़ी महरैली को मिला, इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार को मिला। तो ये सब अपने वक्त के इमाम बन गए। उसी इश्क़ रसूल के नशा को लोगों पे तारी कर दो, लोग शराब के नशे को भूल जाएंगे। कमेंट शेयर जरूर करिए।